Good evening, everyone. Panditji, it is indeed an honor for us that you have agreed to come to our home and do something which is a very special inauguration of the Chaupal session. It is a very special evening indeed, a landmark moment for Prabha Khaitan Foundation. The foundation, in collaboration with Ehsaas Women of Kolkata, is happy to host legendary musical instrumentalist Pandit Vishwamohan Bhattji under the auspices of its initiative Chaupal, inspired by the rural community space in Jaipur. Panditji will be in conversation with Ms. Nandita Pal Chaudhary, our Nandita. I am Malika Verma, Ehsaas Woman of Kolkata, and I take utmost pleasure in welcoming you to this prestigious first ever Chaupal event in Kolkata. This cultural session is being held at my mother's house, who is the Kantha Queen and the multifaceted personality Shamlu Jadeja. I'm supposed to thank you. Before the magical conversation unfurls, allow me to say a few words about Prabha Khaitan Foundation and its cultural initiative Chaupal. Prabha Khaitan Foundation, as a Kolkata-based non-profit trust, is recognized as an organization that creates the finest literary and cultural experiences on the global map and dedicatedly works towards encouraging social welfare, women empowerment, and other humanitarian causes. The foundation was established by an eminent Indian entrepreneur, philanthropist, social activist, and feminist, late Dr. Prabha Khaitan, back in the 1980s. Prabha Khaitan Foundation is the custodian of the literary traditions and the heritage of India. The foundation has a kaleidoscope range of boutique initiatives that encourage the literary and cultural marvels of the nation. With our vision to work for a better tomorrow, we endeavor to reach out. Sorry, I have to read from you. To more people and enrich their lives with stimulating and intellectual conversations. The anthem of the foundation deserves a special mention here. The foundation's anthem portrays the true spirit of Indian philosophy, unity in diversity. The poetic genius of Rabindranath Tagore flows into the music of Rajasthan, and Dadra fuses with Kajri. Prabha Khaitan Foundation flagged off its journey of Chaupal in the city of Jaipur and the cultural and literary hub of India. The prized initiative Chaupal is inspired by the traditional Indian style sit and talk session by the rural community space or Chaupal, where hearings and functions are held. Eminent audiences get to have an informal and intimate interaction with renowned individuals. I feel delighted to welcome you all once again to this event organized by Prabha Khaitan Foundation. It is my honor to be the first ever session of Chaupal in Kolkata. And Panditji, for us, it is a greater honor to have you here to launch this session. Thank you so much. We have with us the Ehsaas women who, some are not here, Shefali Rawat Agarwal, Donna Ganguly, Isha Datta, Gauri Basu, and Nilisha Agarwal. Unfortunately, some could not be here, but Shefali and I are holding fort. Panditji is a celebrated and award-winning music. Actually, he needs no introduction, but may I take the liberty of saying a few lines. He is a celebrated and award-winning music instrumentalist in the Hindustani classical music genre. He is an exponent of Mohan Veena or slide guitar. Professionally known as V.M. Bhatt, he is best known for his Grammy Award-winning album, A Meeting by the River with Rai Kuda. He is also known for other fusion and pan-cultural
collaborations with numerous Western artists such as Henry St. Clair Fredericks Jr., Bella Anton Leos Fleck, and Jerry Douglas. Panditji has been the recipient of numerous awards besides Grammy Award in 1993. He has been lauded with Sangeet Natak Academy Award, Padma Shri and Padma Bhushan. I don't think I needed to say all that, Panditji, but however, हम सब जानते हैं पर conversationalist Nandita is a social entrepreneur. I don't think I need to introduce her also, but still. Social entrepreneur curating and consulting internationally in the field of Indian folk art and performances practices. Nandita is also trained in Indian classical vocal music under Padma Vibhushan Srimati Girja Devi. So, thank you. Without much delay, Nandita, I hand over to you. We are all waiting for this session. Thank you very much. Really not going to get into the greatness and the achievements of Panditji. Even Mallika didn't need to, because it's part of our national treasure. And as Indians, we all should be aware of this. So today, I'm going to jump into the opportunity of having him next to us, so close, and not really trace all his achievements, but actually ask him thode bahut personal questions, and the answers of which, through the lens of his experience, of his success, will help us make informed decisions. You know, because when somebody reaches these kind of heights, they're not only a great musician, but I think they have better skills of living, because they've been able to manage all the resources that we all have much better than us. So there's a lot more to learn than just listen to, you know, what he did from sitar to Mohan Veena. But we listen to those things also. And also, Mallika, if I have your permission, ये खटिया और चौपाल सिर्फ इंग्लिश में जमता नहीं, इसीलिए दो आई एम जेनेटिकली बंगाली, आई एम गोइंग टू ट्राई हिंदी इंग्लिश मिला के कि थोड़ा अपनापन आ जाए उसमें. अगर गलत हो तो आप ज़रूर माफ़ कर देंगे. सो माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू पंडित जी इज़, से जब आप बड़े हो रहे थे, एट दैट टाइम पेरेंटिंग वॉज वेरी डिफरेंट, काफ़ी रिजिड था. The choices given to us were limited to the exposure of the parents, if I look at it in a very harsh way. And then when you were bringing up your children, the world had changed dramatically. Aapke aage, there were all sorts of choices. The boys had those choices too. I'm sure you had a relationship which was not like that with your parents, but a easier one, because we see this in all our families, the changes that have happened. However, आपने भी संगीत चूज किया, आपके बच्चों ने भी संगीत चूज किया. तो was there a pressure? What was it that made you decide that you wanted to be a musician? And secondly, what were the kind of, you know, reasons or the atmosphere, माहौल कैसी थी कि बच्चों ने भी यही चूज किया? First of all, I would like to thank Madam Mallika ji and this beautiful home. The vibrations are so positive here. Wonderful to be here. You know, sometimes what happens, as soon as we enter a place, the first thing attracts to us is the vibrations. And vibrations depends on the person living there. That is the thing. So we found it very, 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 very nice, and thank you for the blessings. And I'm very, very happy today. Prabhaketa Foundation, everybody knows about it, and this Ehsaas just now you introduced. So I'm very lucky to be a part of it, and I think my name will be there as the first Sabha here today, first Chopal today. Okay. Nandita ji herself is from art field, and so I think whatever she is going to ask will be very authentic.
That's the first thing. Otherwise, some interviewers, they ask, okay, sir, can you tell what is your name first? This sort of people we have been, we have seen those kind of interviewers also. And so, okay, let us come to the question part. See, I think in everybody's life, the heredity and environment takes a very, very important role in making of a personality. In our Indian culture, we really care for the tradition to be maintained. And I was fortunate to take birth in a family which is devoted for the last 300 years to Indian classical music. I will start from my original thing. My origin is from Andhra, Telangana Pradesh. My full name is Bhatt Vishwamohan Rao Tailang. Tailang is the surname from Telangana. When Jaipur was establishing, His Highness brought some of the intellectuals from our family, some poets, some writers, some Sanskrit Pandits, some classical musicians, all these kind of intellectual people, he migrated from there to Jaipur. And there was a Gunijan Khana in the Darbar, where all my ancestors were there. And as my father told me that this was like in 1940 or something, when they gave us a Haveli in Chauda Rasta, Jaipur. So there is the gully which is named as Bhatt Gali in our name. And there was a Haveli where we had about 20 rooms. And all these people, we used to live together. All these musicians, writers, Pandits and everything. So when I was growing, I saw this. Number one, I saw that what is joint family system. That came into this thing, You cannot think beyond that. It was like that. It was so strong element it was that we go to this room, the family, different brother, different this thing, all these growing up with kind of atmosphere of music. I saw my father singing, teaching. I saw my mother singing, teaching, and doing all the housework also. And if we talk about my mother, I will tell you. She was the lady who was into music, and in that time, the families were very orthodox. It was not considered to be a lady to learn music or perform music or something like that. Atmosphere was very traditional, very orthodox kind of thing. But my father, he was a very brave man. Progressive. He said, let her sing, let her learn music, let her do what she wants in her life. So that was the spirit. So my father was a very, very strong person. Everybody used to get scared by his eyes only. Even my experience is that I couldn't see at his eye. My eyes were lit down all the time. He was that strong. So, he was like a revolutionarist also. What he did, that he engaged gurus of Jaipur Gharana, Mohanlalji Kathak, and some other musicians to have a tuition to teach my mother vocal. And the Kranti was that there was a Tawaif, Farhat Jahan Bippo. She was a very good singer in Chandpol.
My father said she is the best singer in Jaipur. And he told my mother that you have to learn from her. Wow. Now you can imagine Brahmin family, puja part and this and that, and a Muslim coming to the home with burqa and all these. This kind. The wife on top of that. And that. With- But a different kind of, very I sophisticated. met one like this with Girja Devi, Choti Moti Bai, हाँ. बनारस में वही आखिरी थी. फिर और एक कहानी वहाँ आप बताइए. So that you can imagine everybody, raising their eyebrows and elders and this and that. Oh, burqa. Oh, I don't want to use that Yeah. word. And that, so my father said, we have nothing to do with her Profession. social status or profession or whatever. She is a very sophisticated lady. Even the sons of Maharaja used to go to have tahjeeb and tamiz to learn that from her. First lesson I got from her was, as soon as she entered, तो हम लोग जूते बाहर उतारते हैं, तो किसी ने ऐसे जूता रख दिया था, किसी ने ऐसे रख दिया था. The moment she arrived, first thing she did in our home, कि सब जूतों को एक लाइन से और सीधा करके करीने से लगा है. और आजकल ये बेचारी करती तो बोलते OCD है. आजकल कुछ भी अच्छा करो तो बुराई करते हैं. I mean, this was the first thing. I was a kid that time, but I saw that this lady all of a sudden came from somewhere and doing this. So that was the first impression I got कि क्या हो सकती है तहजीब तमीज़. Now I can imagine कि उनके पास में से तो खैर anyway. तो she used to come to our home और 5 रुपया महीना हमारे फादर ने उनको देना का किया था. That time 5 रुपया बहुत होता था, क्योंकि हमारे पास में जो मैं बता रहा था हवेली थी, फिर हमको 2 घोड़े भी दिए थे दान में, और 3 गांव दिए थे हमको. वाह. और ट्रेडिशन और गांव का जो लगान आता था उससे हमारा काम चलता था. वो तो राजा महाराजा ने कहा कि यू जस्ट डोंट वरी अबाउट अर्निंग मनी, दिस इज़ द मनी फॉर यू. यू गो, रियाज करो, बढ़ाओ, प्रचार प्रसार करो और अपनी साधना को आगे बढ़ाओ, और जब हमारे दरबार में कार्यक्रम हो तो आओ. तब आप आओ. दिस इज़ योर जॉब. तो दैट वाज लाइक गोल्डन पीरियड ऑफ आवर्स. तो धीरे धीरे इस तरह से शुरू होता गया. बट आपके लड़कों का कैसा हुआ? आपका तो अब समझ में आ रहा है. फिर मुझे, हाँ मैं बताता हूँ, फिर मेरी मदर सीख रही हैं तो वो अरे अरे पिया बिन सखे कल न परत मोहे घरे पल जिन जिन रियाली पिया बिन. तो फादर, हाँ बहुत अच्छा, निरेगा मनी दा पम पम गरेगा गरे सा निरेसा गाओ जरा. आपके तान भी इतने अच्छे हैं. पम गम धनी सनी धनी धनी सनी सनी दा पम दा पम गम गणी दा पम दा पम पम गरेगा वो बात गाओ गा दा पम पम गरेगा गरे सा निरे सनी धनी दसा निरे सनी धनी दसा निरे सनी धनी दा गरे सा निरे सनी धनी दसा निरे सनी नी गरे म गम 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 पम दा पम पम गरेगा गरे सा निरे सा पम गम धनी सनी धनी सनी सनी दा पम दा पम पम गरेगा गरे सा निरे सा. तो मेरी मदर देखती रहती थी, क्या गाया आपने, मुझे तो समझ में नहीं आया, मेरे सर से निकल गया. बोले कि दिस इज़ द इमेजिनेशन यू हैव टू डू. तो ये मैं आई वॉज गोइंग, तो उधर से मेरे बड़े भाई साहब सितार बजा रहे हैं, दर दर दारा दारा दर दादा दर दा दर 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 दारा दर दर दा दर दादा, ये अलग चल रहा है, एक वायलिन बजा रहे हैं. माहौल ही कुछ ऐसा. तो सितार में सब, तो इस तरह से एक माहौल हो गया. तो मैं आई वाज लाइक लर्निंग unconsciously. Those melodies, those compositions were going into my ears and my heart and my mind before the student would sing. I used to do that. So this was my bachpan, and I had a very interesting thing that I did not go to school. At all? At all in my life. I did not go to college in my life. I did. College is inviting you to teach the students. I did everything privately. Okay. I said my parents that मैं गया, कुछ दिन गया था, 4-5 दिन. तो I got so bored.
आई वॉज वेरी स्मॉल, और मैंने कहा 6 घंटे में जो ये काम करते हैं, आई कैन डू इट इन 1 आवर इन माई होम, आई विल डू। और अगर मेरे उस समय फर्स्ट डिवीज़न यानी बहुत मानते थे 75%, मैंने कहा अगर उससे कम आए तो मैं स्कूल चला जाऊंगा। ये मेरे प्रॉमिस है आपसे। अगर मेरा परसेंटेज कम होता है प्राइवेट, तो मैं स्कूल जहाँ आप कहोगे जो जिस स्कूल में जाके बैठ जाऊंगा। देन आई स्टडीड बाय माई सेल्फ प्राइवेटली। मैं साल भर म्यूज़िक में करता था, एंड 1 month आई गेव टू स्टडी थिंग्स, जो भी हो रही, और बस उसमें मैं एग्ज़ाम दे के मैं फर्स्ट लेके आ गया, BA तक But you are very lucky that your parents accepted that. वरना वो तो फोर्स होता है। That's amazing. Education is always a force from parents. Because it's like a backup कि म्यूजिक फेल हो जाएगा तो एजुकेशन रहेगा। तो वो मेरी मम्मी ने कहा कि डॉक्टर इंजीनियर तो बहुत हैं, ये कौन सीखेगा, ये आर्ट कौन कैरी करेगा। सो वी हैव टू वरी अबाउट protecting this art of classical music and the tradition. So if he is into it, then let him do. We will not force him to become a doctor or engineer, but we will also not force him to become a musician. Okay. He has something, some fire in him. My mother recognized my fire, and she said he will rule the world after 25 years. I can tell. She said that time. तो इस तरह से मेरा बचपन गुजरा। सॉरी मेरे थोड़े से आंसर लंबे नहीं, इतना अच्छा लगा ये लंबापन। ये सब कहाँ से सुनने को आता। बंदिश गा रहे हैं, तान कर रहे हैं। And then your sons must have been equally impressed by that same your success and all that, and फिर उनको भी अच्छा लग गया गाना बजाना। हाँ, I also did the same thing. I never forced them to learn music or become a musician or professional or no. So you are just a very mature family who allowed everyone to blossom. And it so happened that you and your next generation have chosen music is what I am concluding. I did a small trick also to my sons, वो क्या मैंने क्या किया कि I used to teach students. बाहर जो outsiders हैं, I started teaching them. और उसके सामने तो I used to give so much time. और वो कहते थे हमारे लिए टाइम नहीं है और आप इनको दूसरे लोगों को दे रहे हैं। मैंने कहा यही मैं चाहता था, इसके दिमाग में आया, इन लोगों के दिमाग में ये आना चाहिए कि बाहर के लोग सीख के जा रहे हैं और अपने घर के लोग ही नहीं करेंगे क्या। वन डे इट वाज लाइक ओके, नाउ इट्स मी, माय सन सेड। You did it very smartly. जी फिर So I'm sure आप लोग भी ये ट्रिक सीख रहे हैं। So let me come to the next question, which is a small one, in the sense that your achievements are just staggering. अब एक तरफ पद्म भूषण, एक तरफ ग्रैमी, कभी एरिक क्लैप्टन के साथ कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, बैठ के पूरा क्लासिकल परफॉर्मेंस। तो इन सब के बीच में कौन आपको सबसे ज़्यादा सेंस ऑफ अचीवमेंट दिया है, दैट एक परिपूर्णता जो आता है होने के बाद? देखिए, अवार्ड्स are important, no doubt about it. But if you ask me, I have never worked for any award. It came to me. Like a byproduct of your sadhana. साधना, जब तक आपकी साधना कंप्लीट नहीं होगी और प्योर नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं आएगा आपके पास में। The first thing we have to be very honest to what we are doing. Discipline होना लाइफ में, और फिर then study. If you are studying something, then you have to prepare yourself. Suppose if I want somebody to talk about parliamentary democracy, now what he will do, he will consult all the books, 10 books, and then he will have his own idea that I have to speak half an hour on this topic by myself. किताब का रटा हुआ भी नहीं चलता है, वो रट नहीं सकते इतना सब। सो फर्स्ट यू हैव टू बी क्लियर व्हाट यू आर गोइंग टू। सो द सेम फॉर्मूला इज अप्लाइड ऑन क्लासिकल म्यूजिक ऑल्सो। वी हैव टू नो, लाइक यू सेड, यमन। तो व्हाट इज यमन, कितना इसमें स्कोप है, एंड हाउ मच इट कैन गो, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स इन दैट राग, एंड व्हाट आर द फाइनेस्ट न्यूएंसेस ऑफ दैट राग। उसमें कहाँ मर्म आता है,
कहाँ उसका उसमें रस आता है, कौन सा रस आता है। आप वात्सल्य भाव भी ला सकते हैं उसमें, आप वीर रस भी ला सकते हैं उसमें, आप गमक में रौद्र रस भी ला सकते हैं कि माँ काली का कुछ करना है तो आप उसमें गमक ला सकते हैं। तो ये जो रस और भाव की सृष्टि वही क्लासिकल म्यूज़िक है। और वही आपको सबसे ज़्यादा अचीवमेंट देता है परफॉर्मेंस के हाँ बाद। जी, इसमें जी हाँ, आपका सवाल वही है। तो सी what satisfies me is that कि मैंने अच्छा सुना, अच्छा सीखा, अच्छे गुरु, अच्छे माँ बाप, अच्छी फैमिली, एंड आई हैव लिसन टू ऑल द माइस्ट्रोस ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। मैं सुनता हूँ, मैंने सुनना शुरू किया था बचपन से। उस समय दैट टाइम नो मोबाइल, नथिंग, नो इंटरनेट, नो यूट्यूब, नथिंग वाज देयर। ओनली एक रेडियो हुआ करता था। रेडियो में वो सुई हम घुमाते थे और जहाँ से क्लासिकल का आता था वहीं मेरी सुई अटक जाती थी। और वहाँ रात को 10 से 11 तक कहीं ना कहीं से इंडिया में क्लासिकल म्यूज़िक कंपलसरीली आता था। रेडियो यूज्ड टू। फिर धीरे धीरे ट्रांजिस्टर आ गया, तो ट्रांजिस्टर तो छोटा ही ले लिया और जेब में रख के मैं कहीं भी बाथरूम में भी ले जाने लगा। बाथरूम में भी मैं शास्त्रीय संगीत सुनने लगा। तो दैट वाज द ओनली मीडियम फॉर अस टू लिसन टू इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। तो वो सुनता गया कि यमन राग को बड़े गुलाम अली खान साहब ने कैसे गाया, आमिर खान साहब ने कैसे गाया, भीमसेन जी ने कैसे गाया, मल्लिकार्जुन मंसूर जी ने कैसे गाया। सारे फेवरेट्स के नाम आप गिन रहे हैं। जी, सब लोग ये मतलब आगरा घराने में तो कैसे फैयाज खान साहब ने हे रे रे रे, ये उनका ये स्टाइल था। हाँ, वो सीधा स्ट्रेट है। और पंजाब वाला ये जो ध्रुपद आया था रे 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 नो नो, ये उनका ये थोड़ा सा स्टाइल आ गया। लताफत हुसैन खान साहब हम लोग के साथ ही रहते थे। शराफत हुसैन जी। हाँ, तो आगरा का बहुत सुना उनके। हाँ, आगरा मैंने सुना। तो ये सब घराने की, मैंने ग्वालियर का है तो शंकर पंडित उनका सुना, सहसवान घराना, निसार हुसैन जी का सुना, अभी रशीद खान इज द बेस्ट, किराना, सब इंदौर में जो उस्ताद अमीर खान, सबका मैंने सुन के और आत्मसात कर लिया एक तरह से। माई माइंड वॉज वेरी शार्प। मतलब इस मामले में मैं बहुत अच्छा हूँ, बाकी मामले में पता नहीं मैं कैसा हूँ, लेकिन इस मामले में मैं बहुत अच्छा था कि मुझे ये पता हो जाता था कि इस राग में इस तरह का बर्ताव हुआ है। गरे माम रे गजनी करे रे मदनी दम रे मरे गनी। आप तो गायक भी बन सकते थे। तो अभी इसमें एक भक्ति भाव भी आ जाता है। देखिए, इसमें थोड़ा आध्यात्मिक वो आता है कि रे मगरे कैसा। अब ये है स्लो, लेकिन एक आम आदमी को नहीं समझ में आता है कि है क्या। खाली स्वरों का उतार चढ़ाव भी तो है, लेकिन इसमें इतना ठहराव और पकड़ है कि एक बार आप इसमें फंस गए तो और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। समझने वाला होगा तो वो उसको समझ में आएगा कि। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस इज, आप रविशंकर के स्टार स्टूडेंट थे, तो आपको ऐसा क्या हुआ कि आप सितार वितार ये सब छोड़ के एक पूरा मोहन वीणा ही बना दिए? But what was that motivation? Why were you restless? Were you wanting to express differently? Because कोई आप जितने थे as his student उतने में ही सब बड़े खुश रहते, तो आप में ये क्या थी बात? Yesterday also this question was asked to me on the stage, and उसमें तो हाँ बोलिए। देखिए, I played violin, I had vocal, I had sitar in my life. Oh, all these. I was शुरू से यही करता गया। मैं 14 साल का था, मैं 14-15 साल का। Then the turning point came. से कुछ गिटार सीखने के लिए कोई आए और गिटार को मैंने पहली बार देखा। अच्छा। मतलब मैं थोड़ी सी सच्चाई छुपाने के लिए यहाँ पे मैं स्टोरी बना रहा हूँ। सच्चाई ये थी कि एक लड़की थी, हमेशा रहती है। वो जर्मनी से आई थी
वो गिटार बहुत अच्छा बजाती थी और वो इंडियन म्यूज़िक मेरे फादर से सीखने आई थी। तो मुझे दोनों ही अच्छे लगे, लड़की गिटार। इन द फर्स्ट थॉट कि आई विल इंडियनाइज दिस गर्ल, लेकिन मैंने सोचा कि इट्स ए लिटिल डिफिकल्ट थिंग, आई बेटर डू इंडियनाइजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। That's a smart move. So then while she was leaving our country, we bought that guitar in 25 rupees. फिर वहाँ से मेरी जो जर्नी शुरू, टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ, बिकॉज आई फेल्ट दैट द इंस्ट्रूमेंट हैज़ वेरी गुड साउंड एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू वीणा, विचित्र वीणा, एंड यू नो दैट काइंड ऑफ इंडियन Even ब्रिजभूषण जी also कुछ गिटार पे बहुत ही अच्छा क्लासिकल बजाते थे। क्लासिकल, तो ही मेड सम चेंजेस, मैं उसको थोड़ा और पूरा फाइन कर दिया। हाँ, उनके इंस्ट्रूमेंट में 7 स्ट्रिंग थे, मैंने 20 कर दिए उसमें। आई एडेड तरब ऑल्सो, द सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स, which run underneath the main string and they vibrate without striking them. तो तरब की तार जिसको बोलते हैं, उनकी हम ट्यूनिंग करते हैं, सानिदापा मगरे सानिदापा। तो उसको जब वो करेक्ट ट्यूनिंग हो जाता है एंड वी प्ले ऑन द मेन स्ट्रिंग, तो जो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर एग्जैक्ट सेम है तो दैट स्ट्रिंग विल वाइब्रेट ऑटोमेटिकली। दिस इज साइंस का, फिजिक्स का सिद्धांत है, सेम फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन। तो उस सिद्धांत पे ये इसमें होता है, मैंने नहीं किया, ये तो 500 साल पुराना है। तो उसमें वाइब्रेशंस आती हैं, वाइब्रेशंस होने से इट मेक्स योर साउंड सोनोरस एंड इको आता है, क्योंकि पहले के टाइम पे देयर वाज नो मशीन फॉर इको एंड दिस एंड दैट, थोड़ा फ्लैट ऐसा आता तो फ्लैट जैसा आता था, ड्राई आता था। टू मेक इट इंटरेस्टिंग, जैसे वॉइस में किसी का जुआरी रहता है कि लता जी के वॉइस में या राशिद के, वो तो कुदरती है, तो आप उस तरह से बनाए। वाह। तो उससे मैंने 20 ले लिया, थोड़ा तुम्बा भी लगा दिया, एंड आई लुक्स मच मोर एलिगेंट। तुम्बा ने उसका पूरा इज्जत बढ़ा दिया। और मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करने का भी एक नया स्टाइल बना लिया। यूजुअली दे होल्ड द इंस्ट्रूमेंट लाइक सीधा, अच्छा, आई होल्ड लाइक दिस। ओके, द रीजन इज दैट नथिंग शुड टच योर बॉडी, otherwise dull हो जाएगा। Let it vibrate. The whole body should vibrate. If you keep your instrument here, तो absorb कर लेगा। तो जो बैक है वो सारा absorb कर लेगा, बैक vibrate नहीं करेगा। This is pure physics. Your Andhra blood must have really contributed to understanding the physics. तो that makes the sound, क्योंकि हमको बेस भी चाहिए ना, वरना श्रिल आवाज होती है, आप ऐसा कर देंगे टिन जैसा आएगा तो वो श्रिल हो जाएगी आवाज, शार्पनेस बढ़ जाएगी। तो व्हाट आई डिड कि मुझे उसकी जो जवारी बोलते हैं, वो थोड़ा टेक्निकल है कि हाउ टू मेक द साउंड दैट यू पुट इन अ तानपुरा टू गेट द करेक्ट साउंड। कैसा चाहिए आपको, मतलब शार्प चाहिए या आपको गोल आवाज चाहिए, कैसी चाहिए? एक्चुअली द होल मजा इज इन दैट जुआरी खोलने से होता है। तो वो आई डू माई सेल्फ, बिकॉज नो बडी कैन डू इट, यू नो, किसी को समझ में नहीं आता है जो मैं चाहता हूँ। तो लेट मी कंटिन्यू फॉर सम टाइम। तो ये मैंने 20 तार तुम्बे लगा दिए और थोड़ा अपना स्टाइल बैठने का बना दिया। इसके बाद में क्या हुआ कि इट वाज अकाउस्टिक फॉर ईयर्स टुगेदर। दिस इंस्ट्रूमेंट वाज अकाउस्टिक। अकाउस्टिक मीन्स नो इलेक्ट्रिफिकेशंस, ओनली वुड और माइक लगाया। और फिर अब तो क्या होता था कि जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे उसमें वो विसलिंग प्रॉब्लम होता था, वॉल्यूम बढ़ता, जरा सा बढ़ाते हैं तो विसल आने लग जाता है, विंड आने लग जाती है, कुछ भी आने लग जाता है। तो आई हैड टू स्ट्रगल ए लॉट। देन आई हैड ए रिसर्च कि लेट मी डू इट सम एक्सपेरिमेंट एंड आई वाज एबल टू पुट ए पिकअप बोलते हैं, जो कि साउंड को कन्वर्ट करता है, फिर एम्पलीफायर में जाता है। So did Niladri Kumar do the same thing with sitar? Same पिकअप लगा के। It makes a real difference. उससे सस्टेन बढ़ जाता है। If you have seen नीलाद्री की एक स्ट्रोक में कई चीजें आती हैं उसमें, एक बार किया उसके बाद में वो
और ये बजाता बजता रहेगा रहेगा। तो वो that is because of pickup. Oh, तो I did it in long long back. ago. And तो पिकअप से क्या हो गया कि now the sound is under my control. Then I have a equalizer. I have an equalizer with me. Equalizer है, फिर reverb unit है, फिर एक मैंने experiment और किया है, उसमें एक gadget आता है कंप्यूटर से, उसमें you can produce 3 sounds, I mean simultaneously. So these are fitted on the instrument. मैंने अपना यूनिट पास में रखता हूँ because I used to struggle a lot. The sound person wouldn't understand what kind of sound I am looking for. So now I make my own sound. You give me the worst sound system and I will make it best. You carry your studio with you. I carry my equipments and that is not so difficult. I mean once you are there into then echo is there, reverb is there, and bass, treble, volume, presence, everything is there in my hand. Amazing. So this is something new to Indian classical music, that I control my own sound. I make my own sound. In the worst situation, I get best. You know, I remember this, now it strikes me, it falls into place. We were in, I think, San Francisco or somewhere. I was like the head chamcha, I was behind Girja Devi. The rest were luminaries, Shivji, Hariji, Zakir Bhai. So Zakir Bhai ka tabla वो लोग मिला रहे थे, and those American, the crew just didn't understand उसको क्या चाहिए बायां में दायां. He then, the next year he told me that he went to MIT and actually studied sound so that he could tell them in their terms कि हमको क्या चाहिए. Because they had no idea what he is trying to achieve. We talk that equalizer जो होता है, Yeah. उसकी जो And this is मात्रा होती है 30 years ago. कि 1 kg है तो या 500 जो है उसको आप कितना वो करेंगे, हाँ, इतना hertz जीबी बढ़ेगा, इतना कम. जीबी बढ़ेगा तो आप I used to watch him frustrated, जी, वो चिल्ला रहा है इंग्लिश में, हाँ, जी, जी. और बाकी किशन मामा जी एंड ऑल वो तो इंग्लिश भी नहीं बोलते थे, वो I सिर्फ face this गाली देते problem. थे. हाँ, क्योंकि हम लोग क्या फेस प्रॉब्लम होती थी हाँ, I can हम understand. लोग क्या करेंगे कि कहेंगे जरा बेस बढ़ाओ, बेस कम आ रहा है. If you tell कि increase 100 this thing Hertz. हाँ, then वो जो नॉब है वो बेस वाला ही सीधा कंट्रोल होगा वहाँ पे. So थोड़ा सा टेक्निकल जानकारी होने से अच्छा रहता है. This is wonderful that a classical musician has interfaced science so cleverly that he is himself controlling the quality of the sound that's coming. Because you know, one of the things that whenever I'm a crazy listener of Indian classical music, and what I can hear from the audience who are Western are always complaining, Indian musician आके 15 मिनट तो खाली ट्यूनिंग ही करते रहते हैं. अब बजाएगा कब? नहीं अपनी You know, now things so are we have changed. to overcome these things. It's not that पहले होता था तो that is our thing. नहीं है ना? आप things are changed now. See, मैं आपको एक Yeah, चीज जरूर. बताता हूँ. The same thing happened with me. कि ट्यूनिंग तो हम अब तो खैर हम सब पहले से करके सब तैयार करके बॉक्स में से निकाला एंड इट इज ऑल ट्यून्ड. लेकिन एक सुपर फाइन ट्यूनिंग की 1 मिनट के लिए ज़रूरत पड़ती है. वो तो जितनी देर में वो सेटिंग होती है उतनी देर में हम लोग अपना ट्यूनिंग कर लेते हैं. एरिक क्लैप्टन इनवाइटेड मी. नाउ द क्राउड इज लाइक 40,000 50,000 क्राउड. एंड द स्पीकर लाइन, ओ माय गॉड, पूरा आसमान की से नीचे तक उसमें आ रहा है अब. And Eric Clapton, then B.B. King, then Carlos The luminaries, Santana, absolute luminaries. Santana, John McLaughlin, they come this kind of their sound, you know. और अपना इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बेचारा वो थोड़ा सा तानपुरा चालू होता है, फिर धीरे धीरे आलाप शुरू कर दे. माहौल बनाना पड़ता है. हल्ला शुरू से नहीं बनाएंगे तब तक कैसे गाएंगे होगा? कहाँ से? तो he said, you have 10 minutes वाह. of your performance. Oh, full performance 10 minutes. No, only 10 minutes because there were all world known. हाँ, naturally जो नाम आप गिनवा रहे हो वो तो बड़े-बड़े stars they are हैं. luminaries. तो उन्होंने कहा कि you are representing India, but I am sorry, there will be only 10 minutes for you. तो मैंने कहा कि भाई 10 मिनट्स तो हमको आने में और जाने में और साज निकाल के और वापस वो करने में लग जाएंगे. तो मैं I suggested them कि एक
हाइड्रोलिक स्टेज तैयार कीजिए आप, जो घूमेगा। तो वो वहीं तैयार बैठा रहेगा और जैसे ही मेरा नंबर आएगा वो उसमें सारा साउंड पहले से ही सेट करके रख दिया था मैंने, 5 hours बिफोर कि ये सेट है, ये इंस्ट्रूमेंट रखा है। द होल थिंग केम ऑन राइट ऑन द सेंटर एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग, क्योंकि 10 मिनट में अगर ये 2 मिनट मेरे चले जाते तो मेरे 8 ही, तो इन दोज 10 मिनट्स आई टेल यू आई पुट माई लाइफ दाव पे लगा दिया कि अभी दिखा दो भाई, 10 मिनट में दिखाना है कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक क्या होता है। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि मेरा वो जो पूरा प्रोग्राम का जो सीडी निकला उसमें उन्होंने नंबर 1 मेरा रखा। At least I must congratulate their choice. बहुत बड़ी बात है, they gave me number 1 performance in 10 minutes of Indian music. तो ये होता है कई बार, बड़ा अच्छा लगता है। तो इसी से लिंक्ड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये ऑल दीज सीनियर ट्रेडिशनल क्लासिकल म्यूजिशियंस से हमने सुना है ये क्या फ्यूजन, ये तो पूरा कन्फ्यूजन है एकदम, क्या पूरा नाश कर रहे हैं हम लोग का गाने बजाने का। यू हैव हैड सच सक्सेस विथ फ्यूजन म्यूजिक एंड यू आर सच अ सीरियस क्लासिकल म्यूजिशियन। सो आप हमें बताइए कि ये फ्यूजन से हमारा क्या बढ़ता है क्लासिकल म्यूजिक में, व्हाट इज आवर गेन? ओके, see, number 1, what I think that no music is bad. जब तक कि वो सुर में है और ताल में है सब अच्छा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे रीमिक्स हो, चाहे फोक हो, चाहे कुछ भी म्यूज़िक हो, चाहे वेस्टर्न हो, चाहे जैज़ हो, चाहे पॉप हो, उसमें प्योरिटी होती है, सबकी सच्चाई होती है सुर की, तो वो कोई बुरा नहीं होता है। सो फ्यूजन की बात जब आती है तो यस, यू नो, सम ऑर्थोडॉक्स पीपल रेज देयर आईब्रोज कि ये क्या है, व्हाई इट वाज लाइक a revolution in Indian classical music scenario when my guru Pandit Ravi Shankar ji started collaborating with Yehudi Menuhin, George Harrison and all these Philip Glass and all these musicians were top class musicians. So people here in India, especially the Orthodox people, blamed him that he is diluting the purity of Indian classical music, which was not at all there. I tell you one example. When he was doing this fusion with Yehudi Menuhin ji, my guru did not play Western music on sitar, but he made Indian music being played on the violin by Yehudi Menuhin. I have that record and I remember these things और very उन्होंने clearly. पूरा लिख के दिया कि गम पनि पनि पसा नि सा पनि पम ग दर 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 दर, और पूरी तान वो पूरा स्टाफ रोटेशन में उन्होंने लिख के दे दिया। And they are masters. Western musicians are master. If you give them ये आप notation लिख के दे देंगे तो they will perform like symphony and all they do it. All the violins you see 50 violins playing the same thing, same rhythm, तो वो पढ़ते हैं और बजा लेते हैं। एक बहुत बड़ी खूबी है, अपने यहाँ नहीं है ये। हमारा तो हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग यहाँ से ऑडियो यहाँ से काम तो he made him playing Indian म्यूजिक। और जो भी हुआ तो उसमें अब जैसे कि कोई राग बेस ले लिया साहब, कि चारुकेशी ले लिया, हंसध्वनि ले लिया, भैरवी ले लिया, ये राग सारे इस्तेमाल किए गए और उसमें फ्यूजन को। जैसे बीटल्स ने, आई वंस हैड अ गर्ल नॉर्वेजियन वुड, ही इज प्लेइंग द लीड विद अ सितार, बट सबको नॉर्वेजियन वुड अच्छा लग रहा है, उसको फ्यूजन नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, आई नीड टू नो हाउ मच लॉन्गर हैव वी गॉट, बिकॉज दिस कॉन्वर्सेशन आई कैन हैव विथ हिम फॉर एटलीस्ट 10 hours. He is like a treasure box for me, so I will keep on asking him things. अनिता जी 5 मिनट और, बहुत कम टाइम है, कोई बात नहीं। तो 2 क्विक क्वेश्चंस, आई थिंक दिस माइट इंटरेस्ट यू। ये जो रियलिटी शोज है अभी, मैं बहुत सुनती हूँ उनको, एंड आई फाइंड बच्चे जो गाते हैं, कोई तो बहुत ही अच्छा गाते हैं, और कैसे गाते हैं मैं सोच भी नहीं पाती, इतनी छोटी उम्र में इतनी तैयारी, इतना सुर, ऑटो ट्यून हो न हो, फिर भी उतना लाना बहुत मुश्किल है। सो माई क्वेश्चन टू यू इज, I have this sense that in the last 10 years, the trajectory of reality shows have become much more
prone to Indian classical music. सब बच्चों को समझ में आ गया है कि अगर हम classical नहीं जानेंगे, I cannot have the range, I cannot. So do you agree कि classical music is being looked after also by reality shows? बहुत अच्छी बात कही आप. आई ऑल्सो लाइक दिस काइंड ऑफ टैलेंट शो. कुछ तो वास्तव में इतने अच्छे आते हैं. बहुत. Only thing what they are doing to have the emotions cash and the TRP rate के उसके देते make it all मसाला ये सब हाँ सब आंसू आंसू माँ बाप को. कोई रिच पर्सन सुर में गाएगा तो उसको 10 वोट भी नहीं मिलेंगे. है ना? तो इतने आंसू बहाना और ये सब करना और गरीबी दिखाना. आई एम अगेंस्ट ऑफ शोइंग द पॉवर्टी. बैकग्राउंड ये गलत है. हमारे देश में इतनी गरीबी नहीं है. हमारे देश को आप उसकी तरक्की देखिए. वही तो. आप खाली वही क्यों देखते हैं? आपकी झुग्गी झोपड़ी मत देखिए, बाकी भी अच्छे हैं सब. तो आई एम अगेंस्ट शोइंग द पॉवर्टी ऑफ इंडिया टू एनी शो. खैर तो लेकिन उसको बहुत वो ड्रामेबाजी बहुत करने लगे हैं ये लोग. दैट किस टाइम, क्योंकि परफॉर्मेंस 3 मिनट का हो गया और रोना धोना 6 मिनट का हो जाता है. और हिमेश रेशमिया पता नहीं और कितना कुछ करता है 10 मिनट. तो नहीं, इसमें एक चीज़ जो आपने कही वो बहुत अच्छी है कही कि उसमें क्लासिकल म्यूजिक का कुछ वो होना चाहिए. वही मैं देख रही हूँ कि ये समझ सबको आ गया है कि क्लासिकल सीख के नहीं आओगे तो आप टिक नहीं पाओगे ग्राउंड्स में. वो क्योंकि ग्राउंडिंग नहीं है, बेस नहीं है. जब तक आपके पास में बेस नहीं हो, आप मकान बना रहे हैं तो पहले उसका जंजाल बनाना पड़ता है आपको. जाल के अंदर फिर उसको लॉक करना पड़ता है कि वो हिले नहीं. फिर जाके ऊपर आप दीवार बनाते हैं. जितनी ऊपर बनाएंगे उसके हिसाब से ये नीचे की जमीन भी आपको निर्धारित करेगी. तो ऐसे हमारी भी निर्धारित हमको करनी पड़ेगी कि ये इतनी नींव तो हमको चाहिए, इतनी खोदनी पड़ेगी. वही खर्च भरो तो फिर तार सप्तक में गा सकते हो. अप्पा हम लोग को सुबह यही सिखाते जो है दिस शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग. और फिर उसके ऊपर आप इमारत खड़ी कीजिए, वो तभी मजबूत बनेगी. तो क्लासिकल तो इस इमारत की तरह है कि क्या क्या स्वर आ रहे हैं. अब जैसे लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो. सपोज दिस सॉन्ग. मैं क्या कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि forget about the words. इसको सुर में गाओ, सरगम में गाओ. सरगम में गाओ. सा सा धा प धा ध प ध प ध धा ध प ध म म प नि ध प ग रे सा सा रे 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 ग प ग सा 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 रे नि सा नि ध प म सा सा ध प ध धा. तो ये मैं तालीम करता हूँ. इससे क्या होगा कि आपको सा ग म प ध नि प ग सा म ये राग का पता होगा कि ये तो माच खमाज में ग म प ध नि ध ध ग म इसी पे सब ये है. तो इससे बेसिक पता, और जब वो उनको पता होगा तभी वो उसका स्वर स्थान सही गाएंगे. और ये सिखाने का भी एक हुनर है जो हमारे कहना नहीं चाहिए लेकिन पहले के गुरुओं को नहीं था. वो जो रट्टा सीखे थे वो उतना ही सिखाते थे या उससे थोड़ा कम कि मेरा चीज़ ना निकल जाए. क्योंकि मैंने इनसे बहुत क्लोजली मिला तो एंड बिकॉज आई वाज नॉट गोइंग टू बिकम अ म्यूजिशियन आई डिसाइडेड दे वर वेरी ओपन विथ मी. So I had the joy and love of all these very big musicians firsthand. So I could see the politics and the layers जो चलते हैं, you know. Even Hari ji has to get a program, even though he plays like a god. तो वो भी तो उनकी reality है. So my last question to you, नहीं तो ये आ जाएगी अभी. अच्छा ले लो. I want to ask you this. कि जैसे शिव जी, हरी जी, रईस खान साहब, ये लोग सब हिंदी म्यूजिक में अकम्पनीमेंट बजाते थे और लाजवाब बजाते थे. लेकिन दे यूज्ड टू प्ले इट, आई नो, इन देयर यंग डेज बिकॉज ऑफ इनकम. उस वक्त तो ऐसा था नहीं इतना अब जैसा है क्लासिकल का जो औधा. सो दे हैड टू
augment their lives in Bombay. But I know that you have played like in Lagan, Ded Ishkiyan, then Sathiya, when you are at the top of your profession. But you are not doing music direction like Hari Ji, Shiv Ji, Silsila वगैरह सब किए हैं ना, चांदनी वांदनी. आपने कभी उस रूट को क्यों नहीं चुना? और इतने फेमस होने के बाद भी आप अकम्पनीमेंट बजा रहे हैं, ये क्या? मुझे समझ में नहीं आया. इसमें देखिए, इसमें दो तीन बातें होती हैं. पहली बात तो कि अच्छा ऑफर आना चाहिए. विशाल भारद्वाज को आप चूज कर रहे हैं, रहमान को कर रहे हैं. मैं देख रही थी एक पैटर्न क्या बन रहा है इसका. विशाल भारद्वाज के इश्किया में मैंने बजाया, और उसका वो नेशनल और एक में भी बजाया, डेढ़ इश्किया में बजाया मैंने, फिर सात खून माफ में भी बजाया, और अभी एक और पिक्चर में उसमें बजाया. हाँ, गोल्ड कुछ बता रही, गोल्ड. हाँ, पता नहीं अभी ए.आर. रहमान के भी अभी एक पिक्चर आई थी मिमी, उसमें भी मैंने बजाया. लगान में भी तो लगान, साथिया, और तमिल मूवी थिरुड़ा था. और एक ऐश्वर्या राय की इरूवर करके फर्स्ट फिल्म थी, उसमें भी मैंने काफी बजाया. मैं इंडिपेंडेंटली, देखिए, जब तक कि कोई अच्छा ऑफर नहीं आता है ना. So you play based on the music. If you love it, you do it. हाँ, क्या जो भी उसका स्टेटस हो. They leave it to me. अच्छा, अब जैसे मान लीजिए एक क्या होता है कि यू हैव टू डिवोट, बहुत टाइम चाहिए उसके लिए. अच्छा. वो जो डायरेक्टर और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कहते हैं कि यू बी हियर फॉर 3 months, डोंट गो आउट. अरे अब हम तो क्या है कि हम तो बिना पानी के जैसे मछली तड़पती है, तो वैसे तड़पना शुरू हो जाते हैं जब तक कि हम कॉन्सर्ट के ऑडियंस को जो रूबरू एक लाइव जो आपका रिस्पांस, उसके वो हमारी लाइफ नहीं है. अब वो कहते हैं कि साहब आइटम सॉन्ग, एक आइटम सॉन्ग ठूसना है इसमें. अब बताइए, हम क्या कैसे आइटम सॉन्ग ठूसेंगे. मतलब थोड़ा सा वो ऐसा लगता है कि यू आर कंप्रोमाइजिंग योर स्टेटस एंड योर respect what you have earned. So it's your the whole life self-respect. of being into classical. तो या तो आप एक जंप मार दीजिए कि now I am going to do this, only devoted to commercial things. Then आप आइटम सॉन्ग भी लाइए, कुछ भी लाइए, कुछ कितना ही. तो आपका फेवरेट इंडियन म्यूजिशियन कौन है अपने आप के अलग? मैं किसी एक को फेवरेट मानता ही नहीं हूँ. नहीं, क्योंकि दिस इज सच ए वास्ट सब्जेक्ट. इसमें हर फूल की अलग खुशबू है. मतलब क्या पंडित रविशंकर जी, क्या उस्ताद विलायत खान साहब, क्या आपके निखिल बनर्जी, क्या सितार बजाए हैं, क्या, और ये क्या क्या लोगों ने करके दिखाया है. हरि प्रसाद जी हैं, तो पन्नालाल घोष जी भी हैं, और ये सब. तो इन लोगों को मतलब it's very difficult for me to choose one. They have influenced my life, all of them. और मैं अभी छोटे बच्चे को भी सुनता हूँ तो मुझे लगता है ओह वाह, this is something very inspiring. जैसे राशिद and I grew up together. जितना सारे लोग रियाज करते थे, उसका 1/4 भी वो नहीं करता था. दिन भर ट्रैम डिपो इधर उधर कहाँ घूमता था, कबाब बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. लेकिन वो मुंह खोलता था, उसका कुदरती पता नहीं क्या निकलता था कि सब बस दंग रह जाते थे कि ये क्या गा रहा है. इतना छोटा सा तब था. बस इसके साथ ही वी विल कम टू एन एंड. माय लास्ट क्वेश्चन, एवरी मिनट इज अ लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज आई रियली वांट टू नो दिस, कि व्हाई आर वी नॉट प्रोड्यूसिंग द न्यू ग्रेट्स. अब न्यू ग्रेट म्यूजिशियंस जो सब आपके ज़माने के, अभी तो उन्हीं का हम लोग CD और ये सब सुन रहे हैं. नए वाले क्यों नहीं आ रहे हैं? रियाज, आई थिंक हाँ, ये सब थोड़ा अपॉर्चुनिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है. यू नो, अपॉर्चुनिटी मीन्स अब वो वैसे फिल्म बिमल रॉय टाइप और उस तरह के जो फिल्म मेकर्स थे, ऋषिकेश मुखर्जी, एंड दीज वर द वेरी क्लासिकल, मतलब हाँ, एंड पीपल. तो उनका जो म्यूजिक पार्ट होता था वो भी बहुत. नहीं, मैं इसके लिए नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ क्लासिकल म्यूजिक में क्यों नहीं नई पीढ़ी में एक्सेप्शनल निकल रहे हैं. जैसे हम लोग सोचते थे कि कौशिकी, ये लोग हैं फीमेल में, नो डाउट. बट व्हाट अबाउट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, डांस इज जस्ट कोई नहीं है नया. अभी भी भीमसेन जी का CD हम लोग सुन रहे हैं, इफ यू वांट टू हियर द बेस्ट. अच्छा, उल्लास कशालकर जी हैं, वेंकटेश कुमार, बट दे आर नॉट न्यू जनरेशन, दे आर 60-70 तक. तो अभी कौन है, क्यों नहीं है? नहीं, मैं समझता हूँ कि हम लोग का
उनको एक्सपोजर पूरा दे नहीं पाए। टैलेंट इज देयर, मैं बताता हूँ आपको। और रियाज भी है क्या? रियाज भी है, बहुत 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 अच्छी जनरेशन है, बहुत अच्छी जनरेशन है, और बहुत समझ बढ़ गई है, थैंक्स टू दिस टेक्नोलॉजी, यूट्यूब और वो सब सुन लिया सबका। तो फिर we can end on a note of hope that there will be great musicians, and our absolutely the most brilliant thing I think of India is our philosophy and our classical music. It's going to continue forever. Though unfortunately this conversation can't. I have bosses who are not happy with me at all. Where are they? Thank you very much, Pandit ji. So such आप तो एक पूरे treasure trove हैं. एक ये बैठी हुई हैं सुप्ति वर्धन, शी इज़ ए वेरी गुड सिंगर। मैं एक मिनट का कुछ एक ऐसी लाइन सुना दीजिए। कोलकाता से शिप्रा बसु दी का कुछ गज़ल नहीं गा। तो मेरे गुरुजी का जो फेमस है याद पिया किया है। याद पिया की आए राम, याद पिया की आए, हाय दुख सहा न जाए, हाय राम याद पिया बेरी को ये लिया कूक सुनाए, बेरी को ये लिया कूक सुनाए, मुझ भी रहने का जिया याद पिया की जाए राम, याद पिया की आए। इसी तरह से कुछ एक नहीं, मैं अब बहुत अच्छा एकदम ऑडियंस में हूँ, नंबर 1 ऑडियंस। गाने इतना बुद्धि तो मुझे है कि मुंह नहीं खोलो। So enjoying a slice of Jaipur in the city of joy, Calcutta, nothing could be better than witnessing a session inspired by the traditional community space in India. It was such a pleasure and delight for us to have the legendary Pandit Shri Vishnu Mohan Bhatt ji in one-to-one conversation with Nandita Pal Chaudhary in this amazing Chaupal session at Kolkata. On behalf of the Prabha Khaitan Foundation, I, Shefali Rawat Agarwal, Ehsaas Women of Calcutta, take this golden opportunity to say a word of thanks to our distinguished guests, Pandit Vishnu Mohan Ji Bhatt and conversationalist Nandita Pal Chaudhary. I would also like to extend my sincerest gratitude to patron Shree Cement Limited, Shamlu Dudeja, and the amazing audience who made this evening special and priceless. I would like to invite R. Pratibhan, Director ICCR, to honor Pandit Ji and Nandita Pal Chaudhary with Ponadai shawls. Goodbye and stay safe.
You have to pack it down.